नवंबर 2012 को महाराणा प्रताप सिंह जी की वीरभूमि हल्दीघाटी से ये यात्रा प्रारंभ हुई। ये पिछले लगभग 9.5 वर्षों से चल रही हैं और इसी तरीके से ये 2043 तक चलती रही। ये यात्रा नो डोनेशन पर्पज से ही चलानी है, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग। ધૂની રે દખાવી ભૂલો રે પડ્યો રે હંસલો આંગણે। નમસ્કાર મિત્રો, અનમોલ મોતી ગુજરાતના અમારા કાર્યક્રમમાં હું હોમી રોડેદરા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, 84 લાખ યોનિમાંથી મને અને તમને જ્યારે માનવનો અવતાર મળ્યો હોય, માનવ દેહ મળ્યો હોય, માનવ એટલે શું કે જેને આપણા શાસ્ત્રકારોએ કીધું છે કે જેને ખરેખર 9 માં છે તેને માનવ કહેવામાં આવે છે। 9 માં એમાં એક માં એટલે ગાય માતા। આપણા હિન્દુ ધર્મની માલિપા ગાય આપણને આપણે ગાયને જે દરજ્જો છે તે આપણને માતા સમાન આપ્યો છે, પરંતુ આ બાબતથી હું અને તમે કદાચ ક્યાંક ને ક્યાંક એમ કહેવાય કે અજાણ છે। આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક એ મુદ્દાઓ પર કદાચ આપણે બેદરકાર છે। કેટલાક ગણ્યા ગાંઠિયા લોકો કે અમુક લોકો આ ગાયો માટે રાત દિવસ એક કરી અને કામ કરી રહ્યા છે। ઘણી બધી ગૌશાળાઓ આ ગાય માતાઓ માટે પોતાનું એમ કહેવાય કે સંપૂર્ણ દાવ ઉપર લગાવી અને આજના ઘણા બધા યુવાનો કામ કરી રહ્યા છે, પરંતુ આ કામ કદાચ થોડા ઘણા લોકોથી શક્ય નથી। થોડા ઘણા યુવાનો કે થોડા ઘણી બહેનો કે થોડા ઘણા વ્યક્તિઓથી આ કામ કદાચ આસાન નથી। એના માટે આ દેશનો એક એક નાગરિક, આ દેશનો એક એક હિન્દુનો દીકરો, એક એક હિન્દુની દીકરી જ્યારે જાગૃત થશે, આ ગાય જે છે તે આ ગાય માતા મારા અને તમારા ઘરે એક એક ઘરે જ્યારે આપણે એક એક ગાયને પાળશું, એક એક ગાયને એમ કહેવાય કે આપણા ઘરે એમની વ્યવસ્થા કરશું, ત્યારે આ કામ ખૂબ આસાન બની રહેશે। પરંતુ આજના સમયમાં મને અને તમને સ્વાર્થ વગરની કદાચ કોઈ પણ વસ્તુ મારા અને તમારા ઘરે નથી પોસાતી, પરંતુ આજે આપણે એક એવા સાધ્વી માતાજીને મળશું, એવા માતાજીને મળશું કે તેઓ શેખ રાજસ્થાન એટલે કે હલ્દીઘાટીથી તેમની એક યાત્રાની શરૂઆત કરી છે। એક એક ઘરે, એક એક ગામડે ગામડે જઈ અને મને અને તમને ગાય આપણની માતા છે, હિન્દુ ધર્મની માલિપા ગાયનું શું મહત્ત્વ છે, અને સાથે સાથે વિજ્ઞાનથી પણ મને અને તમને સમજાવવાની ખૂબ જ સફળ કોશિશ કરે છે કે ગાય મારા અને તમારા માટે કેટલી જરૂરી છે, ગાયના મારા અને તમારા જીવનમાં કેટલા બધા ઉપયોગી છે અને કેટલું બધું તેમના દ્વારા મને અને તમને તે ઉપયોગી સાબિત થાય છે। માતાજી ગામડે ગામડે જાય છે અને છેલ્લા 9 વર્ષથી એમ કહેવાય કે એમનો જે ટાર્ગેટ છે કે ભારત વર્ષના એક એક ગામડે, એક એક ગામડાના ખૂણે ખૂણે જઈ અને માણસને ગાય એટલે શું, ગાયનું મહત્ત્વ મારા અને તમારા જીવનમાં શું છે તે સાબિત કરતી તેઓ કથાઓ કરે છે, માણસોને જાગૃત કરે છે। તો આજે તેઓ જ્યારે આપણા વિસ્તારમાં હોય, જ્યારે આપણે તેમની પાસેથી તેમનું જે આ યાત્રા છે, તેમનું યાત્રાનું જે પ્રયોજન છે એની પાસેની થોડી વાતો જાણશું, અને ગાયને મારા અને તમારા ઘરે એક એક ગાય, હર ઘર એક એક ગાયનું જે સૂત્ર તેઓ લઈને નીકળ્યા છે તે એમાં આપણે તેમને સહભાગી થવાની कोशिश करશું। माताजी, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, ज़्यादातर तो हमारा कार्यक्रम माताजी हम लोग गुजराती में बनाते हैं, लेकिन आप जो कि आपको हिंदी ज़्यादा आप
समझा सकते हैं आसानी से। इसलिए हम यह हमारा जो कार्यक्रम है वो जो मेरी टूटी फूटी हिंदी है उससे हम ये कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे जो दर्शक मित्र है, हमारे जो दोस्तों है, उसको आपके बारे में थोड़ी जान पहचान और आपके बारे में थोड़ी बात करेंगे। जी, मैं 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं आध्यात्म चेतना पदयात्रा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए निकली हूँ। ये संकल्प, ये यात्रा की परिकल्पना मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की थी और गत 1.5 वर्षों से निरंतर मैं इस यात्रा में सक्रिय हूँ। गांव-गांव जाना और गाय माता जी की महिमा लोगों के बीच में रखना, जिससे लोग गाय माता जी से जुड़े और गौ माता से जुड़ के सुखी, श्रेष्ठ, निरोगी एवं श्रेष्ठ जीवन जिए, ये इस यात्रा का उद्देश्य है और फिलहाल मैं इसी यात्रा में हूँ। माता जी, आपने ये जो यात्रा की शुरुआत की है वो आप कब से शुरू की है और अभी कितना टाइम हुआ है और अभी कितना भ्रमण आपको इस बारे में बाकी है वो बताइए थोड़ा। 4 दिसंबर 2012 को महाराणा प्रताप सिंह जी की वीरभूमि हल्दीघाटी से ये यात्रा प्रारंभ हुई। ये पिछले लगभग 9.5 वर्षों से चल रही हैं और इसी तरीके से ये 2043 तक चलती रहेगी। अभी राजस्थान प्रांत में कार्य पूर्ण हुआ है। राजस्थान में लगभग 82,000 किलोमीटर की दूरी इसने नंगे पैर पैदल पार कर ली हैं। 18,000 से अधिक गांव, कस्बों, शहर ढानियों में ये हो गई हैं। उसके बाद ये दूसरे राज्य अर्थात अपने गुजरात में प्रवेश कर गई 10 सितंबर 2022 को और अभी ये यात्रा वर्तमान समय में गुजरात में चल रही है। आधे से अधिक गुजरात का कार्य पूर्ण हो चुका है और लगभग 1,500 गाँव में हम गुजरात के पहुँच चुके हैं। और आप जो ये पद यात्रा कर रहे हैं उनमें आप बिल्कुल कोई भी सवारी पे नहीं बैठ रहे, बराबर है, अपने पाँव से, और वो भी खुले पाँव से पद यात्रा कर रहे हैं, बराबर है। जी जी, नंगे पैर ही यात्रा हो रही है और मेरा संकल्प है कि जब तक ये यात्रा चलेगी अर्थात 3 दिसंबर 2043 तक, तब तक वाहन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, चाहे कैसी ही परिस्थितियाँ हों। और आप जो ये यात्रा कर रहे हैं आपने शुरुआत 2012 से की है, तो हम 9 साल के आसपास की ये यात्रा आप कर चुके हैं, बराबर है ना। और जो आप 2043 का बोल रहे हैं, तो ये पूरा आपने जो बैनर लगाया है 31 साल तक ये यात्रा चलेगी। जी, 31 वर्ष तक 2043 तक यात्रा चलेगी। माता जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा। हिंदू का लड़का, हिंदू का बेटा, हिंदू की बेटी, हर कोई जानता है गाय हमारी माता है, गाय के लिए हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जान सब रहे हैं। अगर ज़रूरत है तो एक दिन के लिए माता जी की गाय माता की पूजा भी कर रहा है, लेकिन जो उसका डेली का सॉल्यूशन है, हमेशा का जो सॉल्यूशन है, वो गाय माता के लिए आज भी हम ढूंढ रहे हैं, आज तक हमको नहीं मिला है। तो जो ये आपकी पदयात्रा है उसके हिसाब से, उसके प्रयोजन से आप क्या बताना चाहते हैं सब लोगों को? यही बताना चाह रहे हैं कि गौ माता जी की क्या महिमा है, उनका गोबर, गोमूत्र, इससे क्या लाभ होता है, या उनके स्पर्श से, उनके सेवा से क्या लाभ होता है, उनके दर्शन से क्या लाभ होता है। और हमारा सोचना है कि जब गाय माता जी की दिव्य महिमा को समाज समझेगा तो स्वतः ही नित्य पूजा में, नित्य उपासना में, नित्य सेवा में लग जाएगा। जैसे आज भारतवर्ष में समस्या बन गई है, आवारा पशु कहते हैं, वैसे ये शब्द गौ माता के लिए उचित नहीं है, ये अपमानजनक शब्द है, क्योंकि गाय हमारी माता है और माता कभी आवारा हो ही नहीं सकती और उनको पशु कहना वैसे भी बहुत बड़ी गलती है। मैं सोचती हूँ कि गाय माता तो आवारा नहीं, लेकिन जो उन गाय माता जी का दूध निकाल करके उन्हें सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ देते हैं, वो इंसान ज़रूर आवारा हो सकता है जो अपने माँ को भी स्वार्थ हो रहता है तब तक रखता है। और अगर इस रखड़ने वाली गौ माताओं की, या फिर हिंदी में कहे घूमने इधर उधर दर दर की ठोकर खा रही हैं, भूखी प्यासी मर रही है रोड एक्सीडेंट में या रेलवे पटरियों पर, प्लास्टिक खा करके, कांच के टुकड़े आदि खा करके जिन गाय माताओं के प्राण जा रहे हैं, अगर इस समस्या का समाधान चाहते तो समस्या का समाधान यही है कि समाज गाय माता जी के महत्व को समझे और जन्म से लेकर के उनके अंतिम समय तक वो उनको आंगन में बांध करके भगवती गाय माता जी की सेवा करें, तो सड़कों पर गाय माताएं जाएगी नहीं और किसी भी प्रकार की दुर्दशा उनकी नहीं होगी और समाज को गौ माताओं के कारण कोई अव्यवस्था भी नहीं होगी। माता जी, 31 साल का आपका ये जो पद यात्रा प्रवास है वो आपने शुरू किया है, 9 साल के आसपास हो गया है, लेकिन ये पद यात्रा की जो शुरुआत है वो
इतना बड़ा भारत भ्रमण का जो विचार है, भारत भ्रमण का आपका जो आयोजन है, वो एकाध दो दिन में नहीं हो सकता। सबसे पहले मुझे पता है साधु माता जी का परिवार कुल ऐसी कोई बातें हम नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो ये नाम है, वो नाम आपको हम दर्शक मित्रों को आपका नाम बताइएगा। नाम बताना हम ज़्यादा ज़रूर नहीं समझते हैं। और अभी अभी आपने कहा कि इतनी बड़ी 31 वर्षीय यात्रा एक दिन में या कुछ दिनों में तो शुरू नहीं हो सकती। तो मैं आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दूं कि ये हमारी पहली यात्रा नहीं है। इससे पूर्व 2009 में रामदेवरा पोखरण राजस्थान से शिरडी महाराष्ट्र तक एक 61 दिवस की यात्रा हमने चातुर्मास्य के दौरान की थी। फिर उसके बाद दूसरी यात्रा शिरडी से शेगांव महाराष्ट्र में की गई। इन दोनों यात्राओं के बाद जो हमें समाज में परिवर्तन देखने को मिला, जब हम पुनः उसी रास्ते से होकर के निकले तो काफ़ी परिवर्तन उन प्रवचनों के माध्यम से हुआ था। बहुत सारे लोग गाय माताओं से जुड़े थे। उन गाँवों में गाय माता जी के प्रति जो लोगों का नज़रिया था उसमें काफ़ी बदलाव था। और फिर सोचा गया कि क्यों नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में इस प्रकार का काम किया जाए। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, विभिन्न स्टेट है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, और इस सब का विचार करते हुए और मानव की आयु का गणित लगाते हुए मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने ये निर्णय लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 31 वर्ष तक इस कार्य को किया जा सकता है। तो 31 वर्ष का समय निर्धारित किया गया और इस यात्रा में फिर तय किया कि हिंदुस्तान का हर राज्य, हर जिला, हर तालुका और संभवतः पंचायत ये यात्रा जाएगी। मार्ग में जितने भी गांव आते हैं उन गांवों में गाय माता जी की महिमा का वखान किया जाएगा। तो पूर्व में 2 यात्राएं निकालने के बाद ये नियम लिया गया और फिर 2009 और 10 2 वर्षों में हमने शिरडी, उसके बाद शेगांव तक की यात्रा की। बाद में 2012 में इस यात्रा का प्रारंभ किया गया। और इतना लंबा सफ़र है तो ये नहीं हो कि गाय माता से लोग जुड़े नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में साधु देखने के बाद समाज की एक सहज निगाह बन गई है कि साधु है तो दान दक्षिणा लेना देना ये चलेगा। और इस विषय को लेकर के लोग गौ माता से नहीं जुड़े, ऐसा मन में विचार आया। उसके बाद हमने तय किया कि यात्रा नो डोनेशन पर्पज से ही चलानी है, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं लेना है। 1 रुपये 1 पैसे का भी किसी से डोनेशन नहीं ले रहे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव भी जाएंगे तो हमारा जल, भोजन, हमारी जो भी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं रहेगी, सोने उठने बैठने की जगह, वो सारी व्यवस्था वाहन बनाए गए हैं, उन वाहनों में है। और 31 वर्ष में ये यात्रा चलेगी, लेकिन खाली एक यात्रा के माध्यम से, जिसमें प्रतिदिन 2 प्रवचन होते हैं, अर्थात 2 गाँव में यात्रा जाती। तो 31 वर्ष में सारा भारत कवर करना संभव नहीं है, इसलिए इस यात्रा की 3 शाखाएं हैं। एक यात्रा को महायात्रा कहा गया है, जो वर्तमान समय में हरियाणा में चल रही हैं, और 2 यात्राएं 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं आध्यात्म चेतना पदयात्रा का हिस्सा है, जो पैदल ही चलती हैं। एक है शाम यात्रा, जहाँ से अभी अपन संवाद कर रहे हैं। एक शिव यात्रा है, ये दोनों गुजरात में पैरेलल चलती हैं। एक जिले में शिव यात्रा रहती है, एक जिले में शाम यात्रा रहती है। इस प्रकार से प्रतिदिन के इस यात्रा के तहत 6 प्रोग्राम हो रहे हैं और इसी प्रकार से ये यात्रा 2043 तक अधिक से अधिक गाँव में जाने का प्रयास करेगी। माता जी, आपने ये पद यात्रा की शुरुआत की है। ये पद यात्रा में आप गाय माता की जो महिमा है, गाय माता हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमारे जो रोजिंदा हमारा जो रूटीन है उसमें भी गाय माता जी का क्या योगदान है, उसके बारे में आप सबको समझा रहे हैं। वो आपकी जो कथा होती है हर गांव में, वहाँ तो आप समझाती है, लेकिन अभी हमारे दर्शक मित्रों को हमारी चैनल के माध्यम से अगर संक्षिप्त में हम बता सके कि गाय का हमारे जीवन में महत्व क्या है और हर एक घर में गाय क्यों होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी बात कीजिए। देखो, समाज आज अगर दौड़ लगा रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहता है। और अति संक्षिप्त में चर्चा करें तो सुखी होने के लिए 3 आवश्यक जरूरी हैं: निरोगी काया, खुश और मस्त मन अर्थात मन का सुख, और तीसरा धन का सुख है। और ये तीनों ही सुख गौ माता जी सहज दे सकती हैं। रोगी व्यक्ति को तो निरोगी करते ही हैं, ये पंचगव्य के माध्यम से, अन्य स्रोतों से माध्यम से भी आपको पता होगा, जैसे गोमूत्र पीने से रोग खत्म होते हैं या गव्य पदार्थों के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेकिन
आंगन में अगर गाय माता जी है तो उनके गोबर गोमूत्र की गंध से भी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसे कोरोना जैसी बीमारियां हैं जो श्वसन संबंधित हैं, या तो फिर टीबी जैसे रोग हैं, केवल मात्र 11 गौ माता जिस स्थान पर बैठी हुई हैं उस जगह पर अगर टीबी के पेशेंट को 60 दिन तक 24 घंटे के लिए रखा जाए तो गोबर गोमूत्र की गंध मात्र से उसकी टीबी के सारे जीवाणु मर जाते हैं और वो व्यक्ति 61वें दिन तक बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। पहले अगर देश निरोगी देश था तो कारण यही था, घरों को गोबर से लेपा जाता था, दीवारों की पुताई गोबर से होती थी, नित्य प्रतिदिन चूल्हे पर भोजन बनता था, उस चूल्हे को गोबर से लेपा जाता था, गाय माता जी के छाने अर्थात गोबर के उपले कंडों को जला करके भोजन बनाया जाता था। और गाय माता जी के गोबर में से निकलने वाले गैसेस या उनके सूखे हुए उपले को जलाने के बाद निकलने वाले गैसेस भी हम लोगों को रोगों से बचाते। तो मेरा ये कहना है और हमारा ये सोचना है कि अगर आप रोगमुक्त रहना चाहते हो तो आंगन में गाय माता जी का होना ही ज़रूरी है, तो ही हम पूर्ण रूप से निरोगी काया का सुख पा सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि गाय ने जब तक दूध दिया तभी तक वो उपयोगी है, जैसे ही दूध देना बंद कर दिया हमारे लिए वो एक पशु है, हमारे लिए वो एक ऐसा समझ लो कि जैसे कोई उसका उपयोगी नहीं है। और हम लोग इतने स्वार्थी लोग हैं माता जी कि जैसे दूध देना बंद कर दिया हम उसको रास्ते पे रजड़ने के लिए छोड़ देते। गाय वही गाय प्लास्टिक ऐसा वैसा बहुत कुछ खा के मौत को भेटती है और बुरे तरीके से मौत को भेटती है। अब आप एक नागरिक के हिसाब से ये भारतवर्ष के जो हिंदू के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेगी? संदेश हम देना यही चाहेंगे कि अगर आप सुखी रहना चाहते हो, गाय माता जी दूध भले ही एक सीमित समय तक देती हैं, लेकिन गोबर और गोमूत्र वो निरंतर देती हैं, या उनसे निष्कासित होने वाली सात्विक शक्ति निरंतर निष्कासित होती हैं। तो गाय माता जी को आंगन में ही बांधना चाहिए, चाहे वो दूध नहीं दे या नहीं दे। और अगर हकीकत में देखें तो दूध दे रही है तो प्रसाद समझ करके ले लीजिए, और गाय माता अगर दूध नहीं भी दे रही है तो गोबर गोमूत्र दे रही है जिससे हम निरोगी काया को पा सकते हैं। शास्त्रों की भाषा में कहूँ तो गोमय वस्ते लक्ष्मी, अर्थात गौ माता जी के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। अष्ट ऐश्वर्यमय लक्ष्मी गौमय वस्ते सदा, 8 प्रकार के सुख देने वाली लक्ष्मी गौ माता जी के गोबर में निवास करती हैं। और जिस घर में गाय माता जी का सेवित गौ माता का गोबर गिरता है उस घर में धन की कमी आने वाली नहीं है। तो मेरे ख्याल से धन एक बड़ी आवश्यकता है वर्तमान समय में, और धन का रुकना या धन का आना ये उसी घर में होगा जहाँ गाय माता जी हैं। अब कम समय में इस विषय को विस्तार से समझाना संभव नहीं है, पर अगर आप विस्तार से इस विषय को समझाना चाहें तो पुनः हमारी मुलाकातों को या प्रवचनों को या जब भी हम आपके गांव में आएँ तब आप हमारे से इस विषय पर बातचीत कर सकते। तो मैं निश्चित विश्वास दिलाती हूँ कि आप चर्चा के बाद संतुष्ट होंगे कि हाँ, गाय माता जी केवल दूध के लिए नहीं अन्य कारणों से भी रखे जाते हैं। और अगर घर घर में गाय माता अंतिम समय तक सेवा पाएगी तो हमें नहीं लगता कि गाय माता की दुर्दशा होगी या वो भयंकर यातनाओं के बाद मृत्यु को प्राप्त करेगी। और कुछ तो समाज को गाय माता जी के प्रति देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनकी महिमा को समझना पड़ेगा। एक थोड़ा सा विचार मैं यहाँ पर इतना कहूँगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग गाय माताओं को आंगन में ही बांधते थे। विचार करो, भैंस के लिए तबेले बनाए जाते थे, घोड़ों के लिए अस्तबल बनाए जाते थे, हाथी रखते थे तो उनके लिए गजशालाएँ बनती थी, बकरी खरगोश ऐसे पशु रखने के लिए वाड़े बनते थे। लेकिन गाय माता के लिए कोई अस्तबल या कोई गजशाला या फिर कोई तबेला वाड़ा नहीं बनता था, गाय माता को आंगन में ही बांधा जाता था। और अगर आप देखेंगे तो पहले लोग 100 गाय माताएं भी रखते थे, 20 से 100 गाय माताएं लगभग घरों में होती थी। तो सामान्य तौर पर 6 से 7 गाय माताओं का दूध हमारे उधर पूर्ति के लिए पर्याप्त होता था। फिर भी अधिक संख्या में गौ माताएं क्यों रखी जाती थी? पहले दूध का बिजनेस भी नहीं था भारत में, दूध बेचना, दही छाछ बेचना ये तो अपनी परंपरा में ही नहीं था। फिर भी इतनी गाय माताएं रखते थे क्योंकि अपने बड़े बुजुर्ग जानते थे कि मुझे भले ही 6 गाय माताओं की जरूरत है, फिर भी वो 14 गाय माताओं को रखते थे क्योंकि उनको पता था कि गाय माता दूध के लिए नहीं, सेवा और दर्शन के लिए रखी जाती हैं। और हमें उस अभ्यास या उस अध्ययन तक पहुंचना पड़ेगा। मेरा विश्वास है अगर अपने हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिक गाय माता जी के इस दिव्य महिमा को समझते हैं तो हिंदुस्तान के धरती पर कोई गाय माताएं सड़कों पर घूमने वाली नहीं हैं या
उनको चारे पानी को लेकर के कोई समस्या आने वाली नहीं है और उनकी सेवा समाज के लिए बोझ न रह करके उनकी सेवा एक आनंद का विषय बन जाएगा। बस गाय माता की दिव्य महिमा को समझना पड़ेगा। वर्तमान समय में गौ विषय को लेकर के भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा है और अज्ञान है। अगर वो अज्ञान मिटता है तो निश्चित गौ क्षेत्र में एक दिव्य क्रांति समाज में और देश में निर्माण हो सकती है। दोस्तों, हमने माताजी से बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारा गाय माता का जो महिमा है वो माताजी ने हमारे यहाँ हमारे कानों तक पहुँचाने की बहुत ही सफल कोशिश की है। दोस्तों, 31 साल का सफ़र है, 9 साल हुआ है। और पूरे भारतवर्ष में माताजी ने जैसे बताया उनकी 3 शाखाएँ, एक एक गांव घूमेगी, एक एक गांव जाएगी और एक एक गांव में एक एक घंटे की जो कथा है वो माताजी और दूसरी जो दो शाखाएँ हैं वो भी सबको सुनाएगी। और गाय की जो महिमा है वो हमारे कान तक पहुंचाने की वो माताजी ने जो कोशिश की है उसमें अभी ये पोरबंदर ज़िला का ये जो सीमानी गांव है उधर मेरे ही गांव में माताजी का आज इधर ठहरना था और अभी यहाँ से माताजी दूसरे गांव जाएगी। और हम लोग जितना हो सकेंगे, हमारे आसपास के विस्तार के लोग जितना बन पाएगा उतना हम माताजी को साथ सहकार देंगे और उनका जो काम है वो थोड़ा आसान बन जाए उसके लिए जितना बन पाएगा हम माताजी हमारे विस्तार के लोगों को हम बे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आपका जो ये काम है उसमें आपको सहयोग करें, ठीक है। और साथ साथ में माताजी एक बात हम हमारे दोस्तों को बताएंगे कि इसमें धनराशि बिल्कुल नहीं ली जाती है। 1 रुपये का भी डोनेशन ये जो यात्रा है उसमें ना ही कोई लेता है और ना ही देने की छूट है। तो हम जितना हो सके अपने तन से जितना हो सके गाय माता के लिए काम करेंगे और माताजी जैसे और लोग जो भी लोग गाय माता के लिए काम कर रहे हैं हमसे जितना हो पाएगा उतना हम उनको साथ सहकार देंगे। माताजी, मेरे को पता है आपको अभी इधर से दूसरे गांव जाना है, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन उनमें से समय निकाल के आपने हमको इतना टाइम दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी इस चर्चा से गौ माता जी की पूर्ण महिमा आप तक नहीं पहुँची है, लेकिन फिर भी अगर आप गाय माता की पूर्ण महिमा को सुनना चाहते हैं तो 8 अप्रैल 2024 से 9 अप्रैल 2025 तक पूर्ण 365 दिन की एक कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिस कथा का सीधा प्रसारण संस्कार टीवी चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन धेनु टीवी पर किया जाएगा। तो अगर आप गाय माता जी की और भी दिव्य महिमा को सुनना चाहते हैं तो आप इस 1 वर्षीय कथा को ज़रूर सुनें। कथा प्रारंभ होगी 9 अप्रैल 2024 से 8 अप्रैल 2025 तक कथा चलेगी। तो आप सभी दर्शक इस कथा को ज़रूर सुनें, गौ माता जी की महिमा को समझें, गौ माता से जुड़े और अपने भारतवर्ष को उन्नति की ओर, अपने जीवन को कल्याण की ओर लेकर के चलें। धन्यवाद।